आज वो इसकी बहन है। इसने अपने मुंह से बोला साहब गलीजा है, अपने मुंह से बोला भाई गलीजा है, अपने मुंह से इसने इकरार किया है, इसी में इसी रिकॉर्डिंग में इसने कहा है कि ये गलीज औरत है। ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬਰਾਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਐ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਕੱਟ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਇਬ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਮਰ ਜਾਈ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਔਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਮਰ ਜਾਈ ਨੇ हाँ जी जी मुसलमानों, रेहान आपको जो दूसरी रिकॉर्डिंग मैंने भेजी है ना अभी आपको लेटेस्ट, वो भी सुनाओ जरा। मुसलमानों ये कह रहे हैं कि उम्मे रुबाब गंदी गालियां निकालती है, एक गालीबाज औरत है। जी जी चलने दो, रेहान पूरी सुना दो। वलीद भाई उत्ते आ जाओ ना, उत्ते आओ तुहानू सुना दिन्ने आ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬਰਾਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਐ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਕੱਟ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਇਬ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਮਰ ਜਾਈ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗਦਾ ਯਾਰ ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਤੱਕਲ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੋਸਟ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰਨ ਲਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ WhatsApp ਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਫੈਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਫੈਜ਼ਾਨ ਔਰ ਕੁਆਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੱਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮਜਬੂਰਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ वो प्ले हाँ हाँ ਇਹਨੇ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮ ਲੋਕ ਇਹਨੇ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਗਾਲਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਔਰ ਖਿਆਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਗਲੀਜ਼ ਤਰੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਠਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਜ਼ਾਕ ਕੱਲਾ ਖੈਰਮ ਤੇ ਫਲਾਨ ਤੇ ਟਮਕਾਣ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਖਲਾਕ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਇੱਕ यार एक बयानवे दजल और फरेब और अजारी मकारी और खिंजीरियत के उत्ते मबनी है उस तरह गल की करनी मतलब शी इज अ फ्लैट लायर गालां कढाउण तो बाद उन्हां मुंडियां दी तारीफां कर रही है और मुसलसल जारी है और मैनू कह रहे हैं कि मैं कढ़ियां ने देखो इस तो वड्डी की इस तो वड्डी शैतानियत दुनिया ते एग्जिस्ट करदी है कि तुसीं बदमाशां दे नाल बैठ के गालां खोलेंगे ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਔਰਤ ਨਾ ਹੋ वाह तो तेरी जरूरत किस तरह के तू मैं बदमाशा के कोल मैं गाला मेरी बेट दोबारा सुनो ਦੇ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਔਰਤ ਨਾ ਹੋ तो तेरी जरूरत किस तरह के तू मैं बदमाशा के कोल मैं गाला मेरी बेटियां ਨੂੰ खबरदार बकवास कर रही है तेनू औरत समझ के तेरी इज्जत कर तो तू सिर ते चढ़ी जा रही ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁੱਤੇ ਔਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮਜਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟੁਰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ नहीं समझ रही है कि मैं चरम ज़बानी झूठ और फरेब दे नाल मैं लोगों को नहीं बना सकती
ਇਹਨੇ ਹਰ ਉਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ बाजारी ਲਾਏ औरत वाली बार बार प्ले ਬੱਚਿਆਂ करो ਦੇ ਇਹਨੂੰ बयान। ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵਾਕਈ ये हाँ जी क्या हुआ? बयान ये बाजारी औरत वाली पीछे से प्ले करो, ये तमाम मुसलमानों को सुनाओ कि जिसको ये आज अपनी बहन कह रहा है, कल उसको बाजारी औरत और गालीबाज औरत कह रहे हैं। बाजारी औरत जो दोबारा मर्दियों प्ले की करो। ब्रॉड पे मलक मर्दियों की साहब, ब्रॉड पे चौधरी उमर साहब, ताड़े माइक बंद क्यों ने? नहीं भाई प्लीज, क्या एक बाजारी औरत जिसको एक शख्स बाजारी औरत कह रहा है आज उसको बहन बना रहा है? बयान दोबारा सुनाओ जरा, ये सुने अफजल वड़ाइच उम्मे रुबाब को क्या कह रहा है। ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ मेरी गल सुनो अपना ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ अपनी जुबान बड़ी खोल लेंगे ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ? बाजारी औरत ना हो तो तेरी जरूरत क्या? यार ये वड़ाइश हराम ज्यादा जो होता है इसको नहीं छोड़ेंगे। ये मुनाफिक जो होता है इसकी गांड में डंडा दे के इसकी मुंह से निकालेंगे। मेरे गाले ਜਿਹੜੇ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ, तेरी जरूरत किस तरह हुई है? बाजारी औरत ना हो तो तेरी जरूरत किस तरह कि तू मैं बदमाशा के कोल मेरे गाल कढा मेरी बेटियां ਨੂੰ। खबरदार बकवास कर रही है, तेनू औरत समझ के तेरी इज्जत करने तो तू सिर ते चढ़ी जा रही है। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ हाँ जी बाजारी औरत ये यार हालत है जी। इनका कुछ करते हैं यार। ये है क्या जो होता है ये बुड्ढा बाबा साहब वड़ से वड़ाइच, इसकी जो होती है वो डैश के अंदर जो होता है ना पूरा जो होता है वो वड़ाइच पाना डाल के इसकी मुंह से निकाल देंगे। जी सिद्धू भाई सॉरी, मैं अपना जॉब पर था तो सुन रहा था सारी बातें मैं। तो पहले मैं इस पे तबसरा कर चुका हूँ। ये आज जो बहन भाई जो बने हुए हैं तो ये एक दूसरे के अंदर घुसने के लिए तैयार थे, पहले एक दूसरे के अंदर निकल जाने के लिए तैयार थे। तो औलादों के ऊपर ये बात हुई। आज वही औलादें इनकी अपनी हैं तो इनकी अपनी ज़ात पे बात आई तो ये चीख रही है। और बनते यहाँ पर ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं, नकाब पोश हैं ये। जो भाई ने पहली बार कहा कि वो दो मुँह वाले सांप, कोई शक नहीं। और पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा तमाम मुसलमानों से ये है कि अगर अस्सलाम वालेकुम से आप जमा हैं तो इन लोगों से महफूज रहें, इनके शरों से महफूज रहें। इनका कोई किरदार नहीं है रद्द कादियानियत के ऊपर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नईम भाई, आपको याद होगा तो ये अफजल वड़ाइच ही कहता था कि मैं बाजारी औरत को ही मैं ये हिमायत नहीं करा खुदा ना खास्ता, मतलब उसके अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि वो कहता है मैं बाजारी औरत को ही बाजारी नहीं कह सकता, मैं तो वो इंसान हूँ। जी हाँ, ये जब शुरू में आया ना तो इसने वो इतनी बार एक लफ्ज दोहराया ना। रिकॉर्डिंग भी मिल जाए, ये रिकॉर्डिंग भी होगी इसकी। मैं कोई इसकी हिमायत जो नहीं मैं कर रहा, बात बता रहा हूँ ना जी उसके लिए तो रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है जी। जो मैं बात हाँ, ये जब शुरू में आया ना तो एक दो लफ्ज इसने बड़े दोहराए। एक तो ये कि मैं 60 साल का हो गया हूँ, दूसरा ये कि 60 साल तक मेरी जुबान से कभी जिंदगी में गाली और गंदी बात कभी नहीं निकली। और बाजारी औरत को मैं बाजारी औरत नहीं कहता हूँ, नहीं ये अल्फाज भी इसके होते थे शामिल, लेकिन बाजारी औरत को भी बाजारी कलाम नहीं होता था। एक तो ये कि मैं 60 साल का हूँ और 60 साल की जिंदगी में मेरे मुंह से कभी गाली नहीं निकली, कभी कोई वाहियात चीज नहीं निकली। और देखो जी अब वो इनके कपड़े उतर रहे हैं इसके लिए, इसकी हमेशा कादियानियों के लिए नहीं निकलती, मुसलमानों के लिए हमेशा निकली है। अक्सर इससे पहले भी जब ये हुआ था ना मामला तो मुसलमानों के लिए तो निकली है इसकी ज़बान से, कादियानियों के लिए नहीं निकली है कभी भी। एक दो बार निकाल चुका है गलती से जज्बात में आकर, बाकी जिस तरह मुसलमानों को करता है ये इस तरह कभी भी नहीं की किसी के साथ नहीं। बाकी इसने तो कहा तो सही है, बात गलत नहीं की है, अच्छी बात की है अगर देखा जाए तो, हकीकत बयान की है। और ये ताहिर को और टिवाना को लॉन्च करने वाला भी बैक के ऊपर जो डायरेक्टर है ना वो यही था। ये सिद्धू जेट आप सुबह थे वो उसकी ब्रॉड पे सिद्धू जेट भाई आप है मौजूद हैं सुबह जो चैलेंज दे रहा था, टोहाना चैलेंज दे रहा था, किस बात का चैलेंज दे रहा था? और गालियों के साथ चैलेंज किस बात का था मेरी समझ में नहीं आया। खाली चैलेंज किस बात का? कोई टॉपिक था? विदाउट टॉपिक अहमद भाई वो उसका चैलेंज मैंने ना वर्ड के रख देना था, उसके अंदर से मर्दियत निकाल देनी थी
पर वो मुझे ना एक ऐसे भाई का फोन आ गया जिनकी मैं बात है ना टाल नहीं सकता। उन्होंने मुझे एक ही बात की, उन्होंने कहा सिद्धू बरार तो थले उतरा। मैंने ना पूछा क्यों, अगर देखा जाए तो वो मैं उनकी इज्जत में ब्रॉड छोड़ दी। बिल्कुल, अगर कोई नीचे सुनने वाला हो तो सुने, तो चैलेंज दिया जाता है। तो चैलेंज का मकसद भी तो सिर्फ गालियाँ, बैठ जाए मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, गालियाँ। चैलेंज कुछ भी नहीं, तो मकसद तो हो बैठने का। आप एक परसों की अफजल वड़ाइच की अहमद भाई रिकॉर्डिंग सुने जिसमें वो कह रहा है उम्मे एक गालीबाज औरत है, दूसरी रिकॉर्डिंग में कह रहा है बाजारी। लिहान जरा अहमद भाई को वो रिकॉर्डिंग सुनाओ जिसमें वो कह रहा है कि मैं उम्मे से क्यों डरता हूँ। तो क्या इसने डर के उम्मे को बहन बनाया है? ये सुने जरा अहमद भाई, ये सुने अफजल वड़ाइच की रिकॉर्डिंग। रेहान प्ले करो ना यार, किधर गए हो? यार ये लोग सही नहीं है, इनका कुछ करना पड़ेगा। ये उनके साथ बैठ के, काफिरों के साथ बैठ के जो था वो मुसलमानों का मुकाबला करें। कुछ भी नहीं करना है, खुद जलील हो रहे हैं, आप बेफिक्र रहो। मतलब कि चलो अगर कोई बैठता है उनके साथ मुनाजरा करता है वो अलग बात है, लेकिन ये तो उनके साथ मिलके हमारे ही खिलाफ बातें कर रहे हैं।